my dear students. Welcome again. So now you are with your ma'am, Mrs. Manju Dagar. So today we are here to study more about the sets. Class 11 topic, sets. So in sets, whatever we have covered, that was the completely different things. And today we are going to study about the Venn diagrams. आज जो हम क्लास 11th में पढ़ने जा रहे हैं वो है वेन डायग्राम्स. वेन डायग्राम. So a Swiss mathematician describes that in a closed curve with the help of points we can represent the sets, and the name of that mathematician was the Euler. That's why we call it Euler Venn diagram also. So Euler was a Swiss mathematician, and he describes that the sets can be represented in a closed curve with the help of points. But later, that British mathematician whose name was that John Wayne, he just make it into practice that the sets can be represented in closed curves with the help of points. So इसलिए इस डायग्राम को हम Euler Venn diagram ही बोलते हैं, और simply we can say that Venn diagrams. So ये उनके नाम पर ही जो है इन डायग्राम्स का नाम हमने रखा है Euler Venn diagram और simply Venn diagrams. तो Venn diagrams जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले जो हम चीज़ें देखेंगे, so I am going to make it clear to you that what do you mean by union. First term is union. So from the name it is clear, union means क्या होता है जोड़. अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, we are having two sets like A and B, तो इन दोनों को जोड़ा कैसे जाए, so that we are using a symbol U for that. A union B. We will read it like that, A union B. Union means joint. We are going to join two things. Two things are completely different or they may have something common in them. So आप example ले सकते हैं, set 1, 2, 3. So this is the set A, and in set B we are having the elements like A, B, 1, 2 like that. So A union B means A union B, that means this is the new set we will form. A union B के अंदर हम एक नया सेट बनाने जा रहे हैं जिसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो A में है और वो सारे एलिमेंट्स भी होंगे जो B में है. तो A के अंदर हमारे पास 1, 2, 3. B के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है A और B. So repetition is not allowed here. So if the two sets having something common, then we will write only once. So this is the collection that we have collected from set A and set B. Whatever elements are there in set A and whatever elements are there in set B, so we can combine both the sets and a new set is formed, that is called A union B. तो A union B को अगर हम से बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे. इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट ए यूनियन बी उन सभी एक्स का सेट है. ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो एक्स ए में है और एक्स बिलोंग्स टू बी, या फिर एक्स बी. सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म. It is the set of all those x such that x belongs to A, either या तो A में है और या फिर B में. तो दोनों में से किसी न किसी में है तो वो A यूनियन B में हो. And if x belongs to A यूनियन B, इसका मतलब x अगर बिलोंग नहीं करता है A यूनियन B के अंदर तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. If x does not belongs to A union B, it means x does not belongs to A and x does not belongs to B. अगर यूनियन में नहीं है इसका मतलब ना तो वो एलिमेंट A में है और ना ही वो एलिमेंट B में है, क्योंकि A या B किसी में से भी अगर एलिमेंट हमारा होता तो उसको यूनियन में
some element does not belongs to A union B, that means that element will not belongs to A and does not belongs to B also. So this is the union part. Now we will talk about, and suppose we are having so many means A1, A2, A3 like that. हमारे पास सपोज कीजिए n सेट्स, कितने सेट्स है n सेट्स है टोटल। तो इनके यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर यूजिंग अ सिंबल u, I running from 1 to n, ai's, we can represent it like that। इन सब की यूनियंस हम सिंपली जनरल फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड वी विल रीड इट लाइक दैट, यूनियन ऑफ ऑल ai's, I running from 1 to n, I की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू n कुछ भी हो सकता। सो दिस इज द यूनियन पार्ट, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड थिंग, एंड दैट सेकेंड थिंग इज इंटरसेक्शन। So intersection means the common part. Intersection. Second, intersection. So what do you mean by intersection? If set A is having the elements 1, 2, 3, 4 like that, and set B is having the elements 2, 3, 6, 8 लाइक, तो ये सेट A और सेट B, इन दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन पार्ट है, जो A में भी है और B में भी, दैट मीन्स द पार्ट दैट बिलोंग्स टू A एंड दैट बिलोंग्स टू B, उसको हम किस में लेंगे, हमारी इंटरसेक्शन पार्ट, एंड वी विल रिप्रेजेंट इट लाइक दैट A इंटरसेक्शन B। इसको हम ये U को आप सपोज कीजिए हमने U को क्या कर दिया है, अपसाइड डाउन, सो दिस इज A इंटरसेक्शन B। अपसाइड डाउन U को हम रीड आउट करेंगे इंटरसेक्शन, और क्या आएगा इंटरसेक्शन सेट के अंदर, जो कॉमन पार्ट है। सो 2 3 belongs to A and 2 3 also belongs to B, that means 2 3 will exist in their intersection part. So this is called the intersection, and in set builder form, if some x belongs to A intersection B, that means x belongs to A and x belongs to B। अगर x किसी A इंटरसेक्शन सेट के अंदर है, यानी इंटरसेक्शन सेट में जो एलिमेंट है वो A में भी होगा और B में भी होगा। सो हम दोनों में है, A में भी है और B में भी है, एंड का यूज करेंगे। इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल यूज एंड यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल यूज और। तो और एंड से आप बिल्कुल फैमिलियर हो जाइए कि और जहाँ कहीं भी यूज हो रहा है दैट इज यूज्ड फॉर यूनियन, एंड द एंड विल बी यूज्ड फॉर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। एंड इफ इन द सेम वे वी आर हैविंग सो मेनी सेट्स and we want to find out the union, then we can write it like that. This U will become upside down and it will read out as intersection of ai's. It is intersection of ai's. इन सभी सेट्स का इंटरसेक्शन है जो हमारे I की वैल्यू 1 से n तक रन करती है। This is the intersection. And next we will come to the point that यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस। थर्ड वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स ए सेट के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, बी सेट के अंदर 3 4 6 7 एलिमेंट्स। Difference, if you want to find out A minus B, A minus B means A में है लेकिन B में नहीं, that is called A minus B. Those elements which belongs to A but does not belongs to B. So A minus B is the set of all those x such that x belongs to A and
A minus B. And if you want to find out the difference of B minus A, it's just converse. It is a set of all those x such that x belongs to B and x does not belongs to A. Strictly सिर्फ A minus B का मतलब है A के ही एलिमेंट जो B में नहीं होने चाहिए, मीन्स कॉमन पार्ट को यहाँ पे हमें अवॉइड करना है. तो अगर हमें A minus B निकालना है, सो हियर A minus B हमारा कौन सा सेट बनने जा रहा है जो सिर्फ A में है, B में नहीं है. 1 2 ये दो एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ A में है और B में नहीं है. तो 1 2 दिस इज द पार्ट A minus B. Second, if you want to find out B minus A means जो सिर्फ B में है, A में नहीं है. तो 3 4 A में भी है, B में भी है, so we can't take these elements. So these 6 and 7, these two are the only elements which are of set B only, and these elements does not belongs to set A. तो ये हमारा find out हो गया difference. So in this way we can find out the difference of two or more than two sets. And now we will talk about the symmetric difference. Symmetric difference. So this is your part 4. Symmetric difference. Symmetric difference. Asymmetric B. With small triangle we will represent difference, symmetric difference with the help of small triangle, or you can say that delta symbol जिस तरीके से हम यूज करते हैं वैसे ही हम symmetric difference का symbol यूज करेंगे. And this is the A minus B intersection B minus A means the common part A minus B और B minus A. What do you mean by this? है इनमें कुछ कॉमन जो सिर्फ A में है लेकिन B में नहीं है, जो सिर्फ B में है और A में नहीं. So इनकी इंटरसेक्शन, that means अगर X हमारा इसमें बिलोंग करता है asymmetric B में, X does not belongs to A intersection B. उनका कॉमन पार्ट नेगेटिव होगा. X does not belongs to A intersection B. So this is the difference. Symmetric difference means A minus B intersection B minus A. Simply it means that X ऐसा एलिमेंट होगा जो A intersection B में belong नहीं करेगा. So now the last part, fifth one, and that one is complement. Complement. So what do you mean by complement? अगर हमें A का complement find out करना है, that means A में जो है उसको छोड़कर बाकी बचा हो. Universal set हमने आपको बताया था. It is the bigger set we are having. The small sets that all will belong to this one. Then the bigger one will be called the universal set. So here universal set के अंदर हमारे पास मान लीजिए 1 2 3 up to 10 नेचुरल नंबर्स का सेट है हमारा, और हम बात कर रहे हैं सेट A के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं. A के अंदर 1 2 3 4. Now we want to find out the complement. A का complement means जो A में नहीं है. यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट A में है उनको छोड़कर जो बच गए वो A के complement में होंगे. मीन्स अगर A सेट के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं तो A का complement क्या होगा, जो A में नहीं है वो सारे उसके complement में होंगे. बच गए क्या? 5 6 7 8 9 10. So it's very clear to everyone that those elements which does not belongs to the set, they will belong to their complement. तो A का complement we will denote with by single dash, or we can read out it as A complement also. तो A complement के अंदर हमारे पास वो होगा जो A में नहीं है. In the similar way अगर U का complement पूछा है तो जो U में नहीं है क्या होगा, कोई ऐसा एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं होता. यूनिवर्सल set is having all the elements that is we are talking about.
तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट आने वाला है 5, क्योंकि यूनिवर्सल सेट को हम बिगर सेट लेते हैं और उससे बाहर की बातें हम नहीं कर रहे हैं। तो हम सिर्फ यूनिवर्सल सेट की बात करें तो उसके कंप्लीमेंट में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम उसे क्या लिखेंगे 5। और अगर हम बात करें ए कंप्लीमेंट तो वो हम देख चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट। ये वापस से ए ही आने वाला है। कैसे आएगा देखिए, ए कंप्लीमेंट में वो है, ए कंप्लीमेंट मींस जो ए में नहीं है वो ए के कंप्लीमेंट में आ गए। तो अब हमें इस ए के कंप्लीमेंट का भी कंप्लीमेंट निकालना है, मींस जो ए कंप्लीमेंट में नहीं है वो ए कंप्लीमेंट के कंप्लीमेंट में होंगे। तो वापस हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 4 मींस दैट इज इक्वल टू ए। So those elements which does not belongs to the complement of A, they will belongs to A, and those elements which belongs to A complement का complement, it will again equal to the A. So it's very confusing. आप इसको easy way में समझिए कि जो A में है वो A complement में नहीं होगा, जो A complement में है वो A में नहीं होगा। तो कंप्लीमेंट का फिर से अगर कंप्लीमेंट निकाल दिया जाए तो वापस से वही सेट हमारा फिर से मिलने वाला है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट, अगर हम ए यूनियन यू की बात करें तो इसका कंप्लीमेंट क्या आने वाला है, सोच के चलिए। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ हम ए का यूनियन कर रहे हैं। तो यूनियन में हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो ए में भी है और यू में भी है। तो अगर हम फाइनली बात करें तो दोनों की यूनियन आने क्या वाली है, यू, क्योंकि ए तो हमारा सबसेट है जो हमने यूनिवर्सल सेट से ही लिया हुआ है। तो यूनिवर्सल सेट इज द बिगर सेट एंड इट इज हैविंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट्स व्हाटएवर गिवन। तो ए का हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो यू से बाहर होगा, इसलिए यूनियन जोड़ने के बाद हमारे पास सेट यू ही मिलने वाला है। तो ए और यू का जब हम यूनियन करते हैं तो हमें यू मिलेगा और हमें फाइंड करना है यू का कंप्लीमेंट, और यू कंप्लीमेंट हम जानते हैं इट्स इक्वल टू 5, क्योंकि यू के कंप्लीमेंट से बाहर कोई एलिमेंट बचता ही नहीं है। यू के अंदर सब कुछ है और जो सब यू के अंदर है वो यू कंप्लीमेंट में नहीं हो सकते, इसलिए दिस इज इक्वल टू 5। अगर हम ए का इंटरसेक्शन यू के साथ करें और फिर उसका कंप्लीमेंट निकालें तब क्या आने वाला है, ध्यान से सोचिए। ए का इंटरसेक्शन यू के साथ कॉमन पार्ट जो ए में भी हो और यू में भी हो, दैट विल बी कॉल्ड इंटरसेक्शन पार्ट। तो ए में भी है और यू में भी है, वो हमारा ए ही आने वाला है, बिकॉज ए इज द स्मॉलर पार्ट एंड इट इज कंप्लीटली इंक्लूडेड इन दिस यू। तो दोनों का कॉमन क्या हुआ, ए। तो ए हमारा और ए का कंप्लीमेंट हमें अब निकालना है, so that will be equal to A complement. Means अगर हम A intersection U का complement निकालेंगे तो वो A complement के बराबर ही आने वाला है। So these are the properties that we have studied for getting knowledge about the Venn diagrams. So अब हम Venn diagrams के बारे में जो है in intersection union जो भी कुछ हमने अभी पढ़ा है that we will study with the help of Venn diagrams also. उनको हम वेन डायग्राम्स की हेल्प से स्टडी करने जा रहे हैं। वेन डायग्राम का मतलब है कि किसी क्लोज्ड फिगर में इस तरीके की क्लोज्ड फिगर लेंगे हम, दिस इज द क्लोज्ड कर्व, वी कैन से दैट क्लोज्ड रेक्टेंगल टाइप या स्क्वायर टाइप हमने लिया है, और इसमें अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके के पॉइंट्स का इस्तेमाल करें। दिस इज सेट ए एंड दिस वन इज सेट बी, एंड दिस रेक्टेंगल, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द सेट्स इन डायग्राम्स। हम एक क्लोज फिगर इस टाइप से लेंगे जो हमारे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगी, और जो भी अदर सेट्स की हम बात करेंगे वो इस तरीके से पॉइंट वाइज जो है वो सर्कल्स के रूप में हमारे ए और बी सेट्स दिखाई देंगे। अगर ये दोनों बिल्कुल सेपरेट है, मीन्स इनमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, और कॉमन पार्ट नहीं है मीन्स इनकी इंटरसेक्शन जो है वो 5 है।
इनका कॉमन पार्ट नहीं है, मीन्स इनके इंटरसेक्शन में कुछ लाई नहीं करता। इंटरसेक्शन में कुछ लाई नहीं करता मीन्स इंटरसेक्शन क्या हो गई 5। अब ये दो सेट्स जो बिल्कुल सेपरेट है, आपस में टच नहीं हो रहे, तो इनका हमने नाम दिया। कैसे टाइप्स है ये? डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स जिनकी इंटरसेक्शन 5 आती हो, जिनमें कोई पार्ट कॉमन नहीं है, उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट है, दिस इज सेट, और सेट ए इस बी का ही सबसेट है, यानी जो सेट है वह पूरे तरीके से बी के अंदर कंटेन है, उसको हम इस तरीके से शो करें, दिस इज सेट ए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि सेट ए कंटेन है, सबसेट है बी का, और ए और बी दोनों किसके सबसेट्स हैं? यूनिवर्सल सेट। तो इस तरीके से हम अगर कोई सबसेट है तो उसको वेन डायग्राम में शो करेंगे। सेट बी सुपर सेट है, वो बाहर ड्रॉ किया जाएगा, जो सबसेट है वो उसके इनसाइड ड्रॉ किया जाएगा। सो हियर वी विल कॉल, अगर इंटरसेक्शन निकालें तो क्या निकलने वाला है यहाँ पे? इट्स वेरी क्लियर, जो कॉमन पार्ट होता है वो इंटरसेक्शन होता है, जो ए में भी हो और बी में भी हो। यहाँ पे कौन सा पार्ट कॉमन है? जो ए में भी है और बी में भी। ए में भी पार्ट और बी में भी पार्ट, दिस इज द कॉमन पार्ट। ये ऐसा हिस्सा है जो हमारा ए का भी है और ये वाला पार्ट बी का। तो इसलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दिस इज द ए, इसके अंदर ही हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी पार्ट। ये हमारा इंटरसेक्शन को शो करता है। डिसजॉइंट सेट्स इस तरीके से, और ये हमारे कैसे हैं? जब ए सबसेट है और उनका कॉमन पार्ट भी कुछ बताया गया है हमें, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं वेन डायग्राम में। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो हमारे इंटरसेक्टिंग या ओवरलैपिंग सेट्स की बात हम कर रहे हैं। दिस इज द यूनिवर्सल सेट, और इंटरसेक्टिंग या ओवरलैपिंग सेट्स की हम बात कर रहे हैं तो उनको इस तरीके से ड्रॉ किया गया। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, एंड दिस पार्ट इज देयर कॉमन पार्ट, जो ए का भी है और बी का भी है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। और ये सिर्फ वो हिस्सा है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। दिस पार्ट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ए में है लेकिन बी में नहीं है, सो दिस पार्ट विल बी कॉल्ड ए माइनस बी। इसको हम कहेंगे ए माइनस बी, जो ए में है लेकिन बी में नहीं। और इधर आपको ये जो दिखाई दे रहा है, हम इसको किस तरीके की शेडिंग दें? ऐसी शेडिंग दे देते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो बी माइनस ए पार्ट। क्लियर? तो ये ए यूनियन बी की बात करें तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट ए यूनियन बी कहलाएगा, लेकिन जो सिर्फ ए का पार्ट है वो ए माइनस बी, और जो दोनों का कॉमन पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी, और जो सिर्फ बी का पार्ट है वो है हमारा बी माइनस ए। सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट वेन डायग्राम्स। और बात करें ए के कॉम्प्लीमेंट की, तो सिर्फ ए वाले को छोड़कर बाकी सारा ए का कॉम्प्लीमेंट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी सारे पॉइंट्स बाहर बच गए ए को छोड़कर, वो सारे ए के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। और बी का कॉम्प्लीमेंट अगर पूछा जाता है तो सिर्फ बी पार्ट को छोड़कर आउटसाइड व्हाटएवर रिमेन्स दैट विल बी कॉल्ड द पार्ट ऑफ द बी कॉम्प्लीमेंट। So in this way we will solve the problems related to the Venn diagrams. So this lecture was completely based on the basic concepts of Venn diagrams, and in our next lecture we will solve the problem related to it. Thank you my dear students.